السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ کچھ نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر دوبارہ اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: کچھ عالموں نے اسے احتیاط کے لیے پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد، درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے۔ اس لیے پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا سب نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم ایک جیسا ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے مطابق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، واجب میں دیر ہو جانے سے۔ نمبر 3، کسی فرض میں دیر ہو جانے سے۔ نمبر 4، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے۔ نمبر 5، کسی فرض کو 2 بار کر دینے سے، جیسے 2 رکوع کر لیے۔ اور نمبر 6، کسی واجب کی حالت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ارادے سے کی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ارادے سے کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان پورا نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب: صرف ایک بار 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا کیا عدل بدل ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہی ساری رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو 2 بار پڑھے جانے سے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھے جانے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھول سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر بھول سے نماز کے حصوں کو ادا نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بھول سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، 2 بار رکوع کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے۔ نمبر 3، پہلا قعدہ یا آخری قعدہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری یعنی جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے ان نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری یعنی جو نمازیں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے ان نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے یعنی آواز سے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ ساری باتیں بھول سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ تلاوت کے سجدے کا بیان۔ سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن شریف میں کچھ
कुछ जगहें ऐसी है जिनको पढ़ने या किसी को पढ़ते हुए सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। सवाल, वे कितने जगहें हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा करना पड़ता है? जवाब, सारे कुरान मजीद में 14 जगहें हैं जिनको 14 सजदे भी कहते हैं। सवाल, अगर नमाज के बाहर सजदे की आयत पढ़े तो किस वक्त और किस तरह सजदा करे? जवाब, ज्यादा अच्छा तो यही है कि जिस वक्त सजदे की आयत पढ़ी है उसी वक्त सजदा कर ले, लेकिन अगर उस वक्त न किया जब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ज्यादा देर करना मकरूह है। और नमाज से बाहर सजदा करने का ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि खड़े होकर तकबीर कहता हुआ सजदा करे और फिर तकबीर कहता हुआ उठ खड़ा हो। लेकिन अगर बैठे ही से सजदा में गया और सजदे से उठकर बैठ गया जब भी सजदा अदा हो गया। सवाल, सजदा तिलावत करने के लिए क्या शर्तें हैं? जवाब, जो शर्तें नमाज की है वही सजदा तिलावत, यानी नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर ढकना, नंबर 5 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 6 सजदा तिलावत की नियत करना। सवाल, सजदा तिलावत किन चीजों से टूट जाता है? जवाब, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है उन्हीं से सजदा तिलावत भी टूट जाता है। सवाल, अगर सजदे की आयत 2 या ज्यादा बार पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर सजदे की कोई खास आयत एक जगह में 2 या ज्यादा बार पढ़ी या सुनी तो एक ही सजदा वाजिब होता है। सवाल, अगर एक जगह सजदे की 2 आयतें पढ़ी या एक आयत 2 अलग अलग जगह पढ़ी तो क्या हुक्म है? जवाब, एक जगह जितनी अलग अलग सजदों की आयतें पढ़ी या एक आयत जितनी जगहों में 2 बार पढ़ी है उतने सजदे वाजिब होंगे। सवाल, अगर कोई आदमी कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त आगे पीछे से पढ़ ले और सिर्फ सजदे की आयत छोड़ दे तो कैसा है? जवाब, ऐसा करना मकरूह है। सवाल, अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है कि वहां और लोग भी बैठे हैं तो वह सजदे की आयत चुपके चुपके पढ़ ले और लोग न सुने तो कैसा है? जवाब, जायज है, बल्कि ज्यादा अच्छा यही है कि चुपके से पढ़ें। बीमार की नमाज का बयान। सवाल, बीमार के लिए किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज होता है? जवाब, जबकि बीमार में बिल्कुल खड़े होने की ताकत न हो या खड़े होने से बड़ी तकलीफ होती हो या मर्ज के बढ़ जाने का डर हो या सर में चक्कर आकर गिर जाने का खतरा हो या खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकता, तो इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है। फिर अगर रुकू सजदा कर सकता है तो रुकू सजदे के साथ, और नहीं कर सकता तो रुकू सजदे के इशारों से नमाज पढ़ ले। रुकू और सजदे के इशारे सर झुकाकर करे और रुकू के इशारे से सजदे के इशारे में सर को ज्यादा झुकाए। सवाल, अगर कोई आदमी पूरा कयाम नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, उसका क्या हुक्म है? जवाब, उस पर इतनी देर खड़ा होना जरूरी है। सवाल, अगर मरीज में बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत न हो तो क्या करे? जवाब, लेटे लेटे नमाज पढ़ ले। लेट कर नमाज पढ़ने की सूरत यह है कि चित लेटे और पाँव किबले की तरफ करे, लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रख कर थोड़ा ऊंचा कर ले और रुकू सजदे के लिए सर झुकाकर इशारे से नमाज पढ़े। यह तरीका तो ज्यादा अच्छा है और जायज यह भी है कि शुमाल की तरफ सर करके दाएं करवट पर या दक्खन की तरफ सर करके बाएं करवट पर लेटे और इशारे से नमाज पढ़ ले। इन दोनों हालतों में दाएं करवट पर लेटना ज्यादा अच्छा है। सवाल, अगर बीमार में सर से इशारा करने की भी ताकत न हो तो क्या हुक्म है? जवाब, जब सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज न पढ़े। फिर अगर एक रात दिन से ज्यादा उसकी यही हालत रही तो छूटी हुई नमाजों की कजा भी उसके जिम्मे नहीं। हाँ, अगर एक रात दिन या इससे कम में उससे सर से इशारा करने की भी ताकत आ गई तो छूटी हुई नमाजों की जो 5 नमाजों या इससे कम होगी कजा उसके जिम्मे लाजिम होगी। मुसाफिर की नमाज का बयान। सवाल, कितनी दूर के सफर का इरादा करने से आदमी मुसाफिर होता है? जवाब, शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं जो इतनी दूर जाने का इरादा करके निकले जहाँ 3 दिन में पहुँच सके। 3 दिन में पहुँचने से यह मतलब नहीं कि सारा दिन चलकर 3 दिन में पहुँचे, बल्कि हर रोज सुबह से सूरज ढलने तक चलना मोतबर है। और चाल से दरमियाने दर्जे की चाल और दिन से छोटा दिन से मतलब है। सवाल, दरमियाने दर्जे की चाल से क्या मतलब है और 3 दिन का सफर कितने मील होता है? जवाब, दरमियाने दर्जे की चाल से पैदल आदमी की चाल से मतलब है और ठीक बात तो यही है कि 3 मंजिल के सफर का एतबार है, लेकिन आसानी के लिए 48 मील का सफर 3 मंजिल के बराबर समझ लिया गया है। सवाल, अगर कोई आदमी रेल या घोड़ा गाड़ी या मोटर पर इतनी दूर का इरादा करके चले जहां पैदल आदमी 3 दिन में पहुंचते हैं तो इसका क्या हुक्म है? जवाब, यह मुसाफिर हो गया चाहे कितनी ही जल्दी पहुंच जाए। सवाल, मुसाफिर की नमाज में क्या फर्क हो जाता है? जवाब, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की नमाजें 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ता है और फज्र, मगरिब और वितर की नमाज
नमाजें अपने हाल पर रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। सवाल, 4 रकातों वाली नमाजों की 2 रकातें पढ़ने को क्या कहते हैं? जवाब, कसर कहते हैं। सवाल, मुसाफिर किस वक्त से कसर शुरू करे? जवाब, जब अपनी बस्ती की आबादी से बाहर निकल जाए उस वक्त से कसर करने लगे। सवाल, मुसाफिर कब तक कसर करे? जवाब, जब तक सफर में रहे और किसी शहर या कस्बे या गांव में पहुंचकर वहां 15 दिन ठहरने की नियत न कर ले उस वक्त तक कसर करता रहे, और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो नियत करते ही पूरी नमाज पढ़ने लगे। सवाल, अगर किसी जगह 2-4 दिन ठहरने का इरादा था लेकिन काम पूरा न हुआ, फिर 2-4 दिन की नियत कर ली, फिर काम पूरा न हुआ और फिर 2-4 दिन की नियत कर ली, इसी तरह 15 दिन से ज्यादा गुजर गए तो क्या हुक्म है? जवाब, जब तक इकट्ठे 15 दिन की नियत न करे नमाज कसर पढ़ना चाहिए, और इसी हालत में 15 दिन से ज्यादा भी गुजर जाए तब भी कुछ हर्ज नहीं। सवाल, अगर मुसाफिर 4 रकातों वाली नमाज पूरी पढ़ ले तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर दूसरी रकात पर कायदा कर लिया है तो आखिरी में सजदा सहव कर लेने से नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर ऐसा करने से गुनाहगार होगा, और भूले से ऐसा हो गया तो गुनाह भी नहीं, और इस सूरत में 2 रकातें फर्ज और 2 नफिल हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया तो फर्ज नमाज अदा न होगी, चारों नफिल हो जाएंगे, फर्ज फिर दोबारा पढ़े। सवाल, अगर मुसाफिर किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है? जवाब, मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से मुक्तदी मुसाफिर के जिम्मे भी 4 रकातें फर्ज हो जाती है। सवाल, अगर इमाम मुसाफिर हो और मुक्तदी मुकीम हो तो क्या हुक्म है? जवाब, मुसाफिर अपनी 2 रकातें पूरी करके सलाम फेर दे और सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों से कह दे कि तुम अपनी नमाज पूरी कर लो, मैं मुसाफिर हूँ। मुक्तदी बगैर सलाम फेरे खड़े हो जाएं और अपनी अपनी 2 रकातें पूरी कर ले, लेकिन इन दोनों रकातों में फातिहा और सूरत न पढ़े, और अगर कोई भूल हो जाए तो सजदा सहव भी न करें। सवाल, चलती रेल और जहाज पर नमाज जायज है या नहीं? जवाब, चलती रेल और पानी के जहाज पर नमाज जायज है। अगर खड़े होकर पढ़ सके, चक्कर खाने या गिरने का डर न हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है, और खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठकर पढ़ ले, और अगर नमाज पढ़ते हुए रेल या जहाज के घूम जाने से नमाजी का मुंह किबले की तरफ न रहे तो फौरन किबले की तरफ फिर जाना चाहिए, नहीं तो नमाज न होगी। जुमा की नमाज का बयान। सवाल, जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? जवाब, जुमे की नमाज फर्ज है, बल्कि जोहर की नमाज से उसकी ताकीद ज्यादा है। जुमे के दिन जोहर की नमाज नहीं है, जुमे की नमाज उसके बदले कर दी गई है। सवाल, क्या जुमे की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है? जवाब, जुमे की नमाज आजाद, बालिग, समझदार, तंदुरुस्त, मुकीम मर्दों पर फर्ज है, लेकिन नाबालिग, बच्चों, गुलामों, दीवानों, बीमारों, अंधों, अपाहिजों और इसी तरह की मजबूरी वालों, मुसाफिरों और औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। सवाल, अगर मुसाफिर, अंधे, अपाहिज, औरतें या बीमार जुमे की नमाज में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज ठीक हो जाएगी या नहीं? जवाब, हाँ, ठीक हो जाएगी और जोहर की नमाज उनके जिम्मे से उतर जाएगी। सवाल, जुमे की नमाज सही होने की क्या शर्तें हैं? जवाब, जुमे की नमाज सही होने की कई शर्तें हैं। नंबर 1, शहर या शहर जितने बड़े गांव या कस्बे में होना। इसी तरह शहर के आस पास की ऐसी आबादी कि शहर की जरूरतें उसके साथ लगी हों, जैसे शहर के मुर्दे वहां दफन होते हों या छावनी हो तो वह भी शहर के हुक्म में है। छोटे गांव में जुमा सही नहीं। नंबर 2, दूसरी शर्त जोहर का वक्त होना। नंबर 3, तीसरी शर्त नमाज से पहले खुतबा पढ़ना। चौथी शर्त जमात और 5वीं शर्त इजने आम। ये 5 शर्तें पाई जाए तो जुमा की नमाज सही होगी। सवाल, खुतबा पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, नमाज से पहले इमाम मिंबर पर बैठे और उसके सामने मुअज्जिन अजान कहे, और जब अजान हो चुके तो इमाम नमाजियों की तरफ मुंह करके खड़ा हो और खुतबा पढ़े। पहला खुतबा पढ़कर थोड़ी देर बैठ जाए, फिर खड़ा होकर दूसरा खुतबा पढ़े। जब दूसरा खुतबा खत्म हो तो इमाम मिंबर से उतरकर मेहराब के सामने खड़ा हो जाए और मुअज्जिन तकबीर कहे, फिर मुक्तदी खड़े होकर इमाम के साथ नमाज पढ़ें। सवाल, खुतबे की अजान किस जगह होनी चाहिए? जवाब, खतीब के सामने होनी चाहिए, चाहे मिंबर के पास हो या 1-2 सफ़ों के बाद या सारी सफ़ों के बाद, मस्जिद में हो या बाहर, हर तरह जायज है। सवाल, खुतबा उर्दू जबान में पढ़ना या उर्दू के शेर खुतबे में पढ़ना कैसा है? जवाब, अरबी जुबान के सिवा हर जबान में खुतबा मकरूह है, लेकिन खुतबे का फर्ज अदा हो जाता है, अगरचे सवाब में नुकसान आ जाता है। सवाल, खुतबा होते वक्त क्या क्या काम नाजायज है? जवाब, नंबर 1, बातें करना। नंबर 2, सुन्नत या नफिल नमाज शुरू करना। नंबर 3,
खाना। नंबर 4 पीना। नंबर 5 किसी बात का जवाब देना। नंबर 6 कुरान मजीद वगैरह पढ़ना। मतलब यह है कि जो काम खुतबा सुनने में नुकसान पैदा करे सब मकरूह है, और जिस वक्त से कि इमाम खुतबा पढ़ने के इरादे से चले उसी वक्त से ये सब बातें मकरूह हैं। सवाल, जुमे की नमाज के लिए जमात शर्त होने से क्या मतलब है? जवाब, जुमे की नमाज में इमाम के सिवा कम से कम 3 आदमी होने जरूरी हैं। अगर 3 आदमी न होंगे तो जुमा की नमाज सही न होगी। सवाल, इज़्ने आम से क्या मतलब है? जवाब, इज़्न के माने इजाजत के हैं। इज़्ने आम से मतलब यह है कि सबको इजाजत हो, जो चाहे आकर नमाज में शरीक हो सके। ऐसी जगह जुमा की नमाज सही नहीं होती कि वहाँ खास लोग आ सकते हों और हर आदमी को आने की इजाजत न हो। सवाल, जुमे की फर्ज नमाज की कितनी रकातें हैं? जवाब, 2 रकातें हैं। चाहे शुरू नमाज से शरीक हो, चाहे 1 रकात या आखिरी कादे में शरीक हो, 2 रकातें ही पूरी कर ले। दोनों ईदों की नमाज का बयान। सवाल, ईद के दिन क्या क्या काम सुन्नत या मुस्तहब है? जवाब, नंबर 1 गुस्ल और मिसवाक करना। नंबर 2 अपने लिबास में से अच्छा लिबास पहनना। नंबर 3 खुशबू लगाना। नंबर 4 ईद उल फितर में जाने से पहले खजूरें या कोई मीठी चीज खाना। नंबर 5 सदका फितर अदा करके जाना। नंबर 6 ईद उल अजहा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना। नंबर 7 ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना। नंबर 8 पैदल जाना। नंबर 9 एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। नंबर 10 ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज न पढ़ना। और नंबर 11 ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल न पढ़ना। सवाल, ईद उल फितर को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है? जवाब, ईद उल फितर में अगर धीरे धीरे तकबीर कहता हुआ जाए तो हर्ज नहीं, और ईद उल अजहा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। सवाल, ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत? जवाब, दोनों ईदों की नमाजें वाजिब है, और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदों की नमाज का वक्त सूरज ढलने से पहले खत्म हो जाता है, और ईद का खुतबा न तो फर्ज है और न नमाज से पहले है, बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। सवाल, ईदों की नमाजों की कितनी रकातें हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती है? जवाब, दोनों ईदों की नमाज में 2 रकात है। इन दोनों नमाजों के लिए अजान और तकबीर नहीं। पहले नियत इस तरह करे कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अजहा की वाजिब नमाज 6 ज्यादा तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़े। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दे। फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर तीसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ बांध ले। फिर इमाम ताउज़, तस्मिया, सूरत फातिहा, सूरत पढ़कर रुकू करे। दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो तो इमाम पहले किरत करे, किरत से निपटकर कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर हाथ उठाए बिना चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाए और कायदे के मुआफिक नमाज पूरी करे। फिर इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़े और सब लोग चुपचाप बैठकर सुने। ईदों में भी जुमा की तरह 2 खुतबे हैं और दोनों के बीच बैठना सुन्नत है। सवाल, ईद उल अजहा के खास हुक्म क्या है? जवाब, रास्ते में जोर से तकबीर कहते हुए जाना, नमाज से पहले कुछ न खाना, तकबीराते तशरीक वाजिब होना। सवाल, तकबीराते तशरीक से क्या मतलब है? जवाब, तशरीक के दिनों में फर्ज नमाजों के बाद तकबीरें कही जाती है, उन्हें तकबीराते तशरीक कहते हैं। सवाल, तशरीक के दिन कौन से हैं? जवाब, तशरीक के दिन 3 हैं। जिलहिज के महीने की 11वीं, 12वीं, 13वीं तारीखों को तशरीक के दिन कहते हैं। सवाल, तकबीराते तशरीक कब से कब तक वाजिब है? जवाब, अरफे का दिन, नहर का दिन और 3 दिन तशरीक के दिनों के कुल 5 दिन कही जाती है। अरफे का दिन जिलहिज की 9वीं तारीख को और नहर का दिन 10वीं तारीख को कहते हैं। 9वीं तारीख को फर्ज की नमाज के बाद से तकबीर शुरू होती है और फिर हर फर्ज नमाज के बाद 13वीं तारीख की असर तक तकबीर कहना वाजिब है। मर्द का सलाम फेरते ही आवाज से तकबीर कहना चाहिए, लेकिन औरतें आवाज से न कहे। अगर इमाम भूल जाए जब भी मुक्तदी जरूर कहें। सवाल, तकबीर तशरीक क्या है और कितनी बार पढ़नी वाजिब है? जवाब, तकबीर तशरीक यह है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और इसे हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार पढ़ना वाजिब है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जनाजे की नमाज का बयान और उससे आगे की किताब पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।